मतलब फिनटेक का रिवॉल्यूशन अगर आप पूछ रहे हो किससे लाया, तो ऑब्वियसली पेटीएम इज ऑर्गेनाइजेशन विच ऑल ऑफ अस नोज कि इंडिया में फिनटेक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन वो थी। पेटीएम जब शुरू हुआ था 2009-2010 में, इट स्टार्टेड विद द कंसेप्ट कॉल्ड पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम का फुल फॉर्म है ये, जो आज की डेट में शायद मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल और पीपल आउटसाइड इंडिया दे मस्ट नॉट बी नोइंग। जितनी भी कंपनीज मार्केट में आई जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया, लाइक पेटीएम की बात करें तो फिनटेक इंडस्ट्री में टॉप पे था। बायजूस की बात करें तो एडटेक कंपनी में वो टॉप पे था। तो ऐसे जितने भी यूनिकॉर्न्स बने वो सारे आज क्रैश हो गए हैं। जब हम यूपीआई की बात करते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, P2P ट्रांजैक्शन एंड P2M ट्रांजैक्शन। एक MDR पे वर्क करते हैं विच इज मर्चेंट डिस्काउंटेड रेट, बट यूपीआई वाज फ्री फॉर द मर्चेंट आल्सो, सो इट गॉट अडॉप्टेड वेरी फास्ट। 8 नवंबर 2016 को जब मोनेटाइजेशन हुआ, हाँ, और 9 नवंबर को पेटीएम की बड़ी सी टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज आई थी, और उसमें सबसे बड़ा फोटो था नरेंद्र मोदी जी का। राइट। If you have ever paid for something with your phone, transfer money using an app, or check your bank statement online, then you are already part of fintech industry. Namaskar, this is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. Today we have special guest and my best friend Mr. Jainam Popat. He has 5 years of experience in fintech industry. Also he worked for Paytm, HDFC and ICICI Security, and now currently he is serving in Loyalty Rewards company. He is focused on converting cash into a digital cash in Indian ecosystem. Let's understand with him what is fintech, who took first mover advantage in India as a fintech startup, and why Paytm failed in the market, and what's the future of fintech industry in India. हेलो जैनम, कैसे हो? ऑल गुड, हाउ आर यू? बस आई एम फाइन। जैनम, मुझे आपसे ये जानना था कि आप मतलब आपका ग्रेजुएशन क्या है और आप फिनटेक इंडस्ट्री में कैसे आए? Okay, it's a very interesting question first of all. So I did my engineering from LDRP Institute of Technology and electronics and communication, and then I decided that I want to pursue MBA for a post graduation. Okay. Then I went to Tapni Manipal and I completed my MBA in marketing and ops, and then I started my career as a wealth manager, and then I took a shift into the insurance industry and then fintech. So I joined Paytm as an organization. That was my first organization where I was working into the fintech industry. And then I moved to build a subsidiary, Loyalty Rewards, and currently I am associated with this organization since last 2 years. Okay. Yeah. So आपने जब फिनटेक इंडस्ट्री में अपना पैर रखा तब आपको क्या लगा कि फिनटेक इतना ग्रो करेगा, ये मतलब क्या व्यू है फिनटेक के लिए? Correct. So when I joined fintech, it was year 2018. Okay. And that was a year, तब fintech industry was booming in India. And आज की डेट में भी अगर आप वर्ल्ड में देखो तो फिनटेक का अगर बर्थ कहीं पे हुआ है, that country is India, right? तो even if you see NPCI as an organization, they are doing a lot of innovative products for growing fintech across the world. And as an Indian, we should be very proud कि our product like UPI kind of product, which is right now crossing borders and reaching to all the foreign countries as well. So जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा वही विजन था कि working in a fintech industry, it will give a different kind of boost into my career as well. And obviously, there would be learning on every day. Okay. So the day I entered the organization, I think मेरी learning उसी दिन से शुरू हुई थी, and it has been always an exponential learning. Every day there were new challenges, new learnings, and with that learning, I kept on growing. And right now we all see कि industry इतना grow हो चुका है कि to keep cope up with the industry, that itself is a challenge, right? Yes, So yes, that's how yes. fintech is growing. Yeah. Okay. Fintech is very fascinating, what I think. But can you explain what is fintech? एकदम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं उसको। फिन एंड टेक मतलब फिनांस को अगर आप टेक्नोलॉजी से मिला दो तो वो फिनटेक है। Okay. आप अगर आज से कुछ सालों पहले की बात करो, लाइक 10-15 years बैक, तब जो भी बैंकिंग होती थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल थी। आपके पापा को या फिर हमारी जनरेशन बैक में अगर हम जाके देखें तो दे ऑलवेज यूज्ड टू गो टू द बैंक, वो ब्रांच विजिट करते थे। एक छोटा सा इवन इफ आई वांट टू ट्रांसफर सम मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मुझे ब्रांच में जाके वो चेक स्लिप वगैरह भरना पड़ता था। आज एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स, राइट? सो दैट इज फिनटेक। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं और मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे केवाईसी भी मेरा अपडेट करना है तो मुझे वहां पे जाके करना पड़ता है। आज आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो, राइट? दैट इज फिनटेक। तो जहां जहां पे मेरा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एक फिजिकल मोड में हो रहा था, जिसको मैं अभी एक टेक प्लेटफॉर्म में लेके चला गया, एंड इट इज हैपनिंग वाया डिजिटल मोड, दैट इज फिनटेक।
ओके तो जहां जहां पे आप देख रहे हो कि जो चीज के लिए जो एफर्ट्स लग रहे थे अर्लियर एंड आज के डेट में उसको एफर्टलेसली आप कर पा रहे हो घर पे बैठे बैठे, दैट इज अगेन अ फिनटेक, ओके राइट? सो इट कैन बी डिफाइंड इन मल्टीपल वेज, बट हाँ आपकी लाइफ को, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, बिकॉज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर डे टू डे लाइफ फॉर यू, राइट उसको इजी कर दिया, दैट इज फिनटेक। ओके सो इट्स अ न्यू बैंकिंग बेसिकली। ओके सो बहुत अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू फॉर दैट। मुझे एक और बात जाननी थी कि फिनटेक की शुरुआत किसने की, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने शुरुआत की, फाउंडर्स कौन थे, फर्स्ट मोर एडवांटेज किसने उठाया, करेक्ट वो कंपनी का नाम क्या है, थोड़ा वो बताइए आप। Correct. So see, there is no particular organization which we can, which is coming on top of my mind while I answer this question. And fintech की शुरुआत, मतलब fintech का revolution अगर आप पूछ रहे हो किसने लाया, तो obviously Paytm is an organization which all of us knows कि इंडिया में fintech revolution start करने वाली organization वो थी, right? QR code का introduction Paytm ने किया था इंडिया में, तो रिवॉल्यूशन तब हुआ। बाकी लोगों के दिमाग में थॉट तो थे कि भाई मैं इसको डिजिटाइज कैसे करूँ। लोन आप जाते थे पहले बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करते थे, घर पे आके आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता था, वो भी डिजिटाइज हो। तो देयर आर मल्टीपल वेज एंड मल्टीपल फॉर्म्स जहाँ पे फिनटेक का रिवोल्यूशन हुआ है, जहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन भी डिजिटल हुए हैं एटसेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके बट अगर आप एक नाम पूछोगे तो ऑब्वियसली पेटीएम हैज हेल्प्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग दिस फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया। ओके सो अगर बात की जाए फिनटेक में, अगर आप पेटीएम की बात करो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं पेटीएम और यूपीआई के बीच में। तो आप ये बता सकते हो कि पेटीएम और यूपीआई कैसे दोनों अलग है? करेक्ट, वो थोड़ा टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप बताओ, एल्गोरिथम वाइज के वो कैसे डिफरेंट है, और पेटीएम कैसे यूपीआई को यूज करके ट्रांजेक्शन करता है, करेक्ट, वो थोड़ा जानना है। So UPI is a technology. Okay. ठीक है, UPI is a technology which was innovated by NPCI first of all. What is NPCI? And NPCI is National Payment Corporation of India, ओके which is founded by Bankers Association of India. Right, it's a private company, but the founders are Bankers Association of India. ओके Correct. Now, when I talk about UPI and Paytm, it's a very different thing. Paytm जब शुरू हुआ था 2009-2010 में, it started with a concept called Pay Through Mobile. Paytm का full form है ये, जो आज के डेट में शायद most of the Indian people or people outside India they must not be knowing. So it was started with the concept कि आप मोबाइल से आई payment, डोंट नो दैट right, right. So it was started with the concept कि आप मोबाइल से पे कैसे कर सकते हो. That is the full form of Paytm. Correct. तो मोबाइल रिचार्ज से जर्नी शुरू हुई थी कि आप पहले मोबाइल के टॉपअप जो आप जाके एक मॉम एंड पॉप स्टोर जो आपके बगल में है, किराना स्टोर, वहां पे जाके पैसे देते थे, आप वो कूपन लेते थे, स्क्रैच करते थे, एंड आपका मोबाइल का टॉपअप होता था, जिसको डिजिटाइज किया गया। अगेन फिनटेक के डेफिनेशन में ये भी फॉलो होता है, राइट? सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉट ऑफ सर्विसेज गेट्स एडेड। आपका मेट्रो रिचार्ज से लेके बिल पेमेंट सिस्टम से लेके आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेके आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जो बैंक में जाके करते थे वो भी ऑनलाइन हुए। यूपीआई तो बहुत बाद में आया, यूपीआई की जर्नी बहुत बाद में शुरू हुई, एंड यू विल बी वंडरिंग दैट पेटीएम वाज नॉट द पायोनियर और नॉट द फर्स्ट कंपनी हु स्टार्टेड द यूपीआई। एक्चुअली पेटीएम lost on UPI market share gaining because PhonePe came into the picture. जब NPCI ने UPI लॉन्च किया, PhonePe grabbed the market, they built the technology and they started going into the market very fast, and highest market share UPI में PhonePe के पास था, आज की डेट में भी उन्हीं के पास है। अच्छा, So Paytm is not holding the highest market share in UPI. So UPI is a technology. अगर आप बात करोगे तो PhonePe leads into that particular market segment. Now your question that how Paytm is different than UPI. So as I said कि Paytm के पास बहुत सारी सर्विसेज है, UPI is just one of the services which they give to the customer. राइट जब हम UPI की बात करते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, P2P transaction and P2M transaction. When I say P2P transaction, so Jainam wants to send money to the Raj. That is peer to peer transfer. ओके राइट, तो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो P2P ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा होता है P2M, जहाँ पे आप कोई भी स्टोर में जाते हो, कोई भी किराना स्टोर में चले गए या कोई भी फूड स्टोर में चले गए, जहाँ पे आपको QR कोड दिखता है, अब उसको स्कैन करते हो एंड आप पेमेंट करते हो। दैट इज P2M, मतलब peer to merchant transaction. राइट So there are two type of transaction in the UPI ecosystem. तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो बनी है, दैट टेक्नोलॉजी हैज बीन क्रिएटेड ऑन यूपीआई हैंडल्स। तो आपका जो अकाउंट होता है, योर सेविंग्स अकाउंट और योर करंट अकाउंट, अभी तो करंट अकाउंट में भी यूपीआई इनेबल हो चुके हैं, इट्स अ रिसेंट इनोवेशन। तो आपके जो बेसिकली अकाउंट होता है उसके ऊपर एक यूपीआई हैंडल बनता है, विच इज इट कैन बी Jainam Popat @paytm और इट कैन बी Jainam Popat @OKICICI, OKHDFC Bank, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? उसके पीछे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, जो आपका बेसिकली
सोर्स अकाउंट बोल सकते हो आप, Right. राइट. देन देयर इज अ डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे पहुंचना है, जहाँ पे इस रुपीस को पहुंचना है, उसका भी एक यूपीआई हैंडल होगा एंड उसके पीछे भी एक डेस्टिनेशन अकाउंट होगा. नाउ दैट कैन बी अ सिनारियो जहाँ पे मेरा यूपीआई हैंडल कैन बी विथ @some बैंक, बट मेरा बैंक अकाउंट वुड बी सम डिफरेंट बैंक. सेम वे मेरा डेस्टिनेशन का यूपीआई हैंडल कैन बी @some बैंक और उसका भी डेस्टिनेशन अलग हो सकता है. मतलब 4 बैंक कैन बी इन्वॉल्व इन वन ट्रांजेक्शन. Okay. राइट, दैट्स हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स. ठीक है, फिर उसमें काफी सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, टेक्निकल कंसेप्ट की एक्वायर बैंक कौन सा है, उसमें इश्यूअर बैंक कौन सा है, राइट. एंड उसके हिसाब से उनका पूरा इंटरचेंज सिस्टम बनता है जहाँ पे वो जो भी आपका चार्जेस लग रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. Right. बट यूपीआई वाइडली फेमस इसलिए हुआ बिकॉज व्हेन इट गॉट लॉन्च्ड, आज के डेट में आपके हर सारे डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एक एमडीआर पे वर्क करते हैं, विच इज मर्चेंट डिस्काउंटेड रेट. बट यूपीआई वाज फ्री फॉर द मर्चेंट आल्सो, सो इट गॉट अडॉप्टेड वेरी फास्ट बिकॉज मर्चेंट के पास जाके अगर आप 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन यूपीआई से करते हो और कार्ड से करते हो तो उसमें बहुत फर्क है. यूपीआई से अगर आपने 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया तो मर्चेंट के अकाउंट में 100 रुपीज पूरे सेटल होते हैं. Right. बट अगर आप कार्ड से करते हो तो वो एमडीआर वो मर्चेंट की जेब से जाता है, वो आपके वीजा, मास्टर एंड रुपे कार्ड नेटवर्क को या फिर आपके इश्यूइंग बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एटसेट्रा बैंक को इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, विच इज 1 रुपीज to 2 रुपीज व्हाटएवर बेस्ड ऑन द डिफरेंट कार्ड नेटवर्क. सो दैट्स हाउ यूपीआई इज वेरी प्रेडोमिनेटली फेमस एंड दैट्स हाउ इट गॉट अडॉप्टेड वेरी फास्ट. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन कंट्री से जो शायद यूपीआई आईडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि वहां पे जो प्राइवेट बैंक्स है उनका डोमिनेंस ज्यादा है. परफेक्ट. सो दैट्स Very व्हाई right answer. उनका अगर कमीशन कट जाएगा तो वो चलाएंगे कैसे अपनी कंपनीज. सो आई थिंक वहां पे यूपीआई अभी तक नहीं एक्सेप्ट हुआ है या लॉन्च नहीं कर रहे, उसका रीजन ये हो सकता है मुझे लग रहा है. वन ऑफ द रीजन पर्टिकुलरली ये है, नो डाउट अबाउट इट. इवन आप अगर इंडियन मार्केट में भी आपने अगर न्यूज रिसेंटली फॉलो किए होंगे तो जब यूपीआई एंड रुपे वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ जीरो एमडीआर प्रोडक्ट, राइट, Visa and Mastercard had a very big, this thing to say कि this will actually reduce our incomes and etc. Because आपका जो कार्ड नेटवर्क था वो Visa and Master था जो वर्क predominantly इकोसिस्टम में प्रिविलेंट था. जब आरबीआई ने रुपे कार्ड लॉन्च किया एंड एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया, रुपे के लिए दे मेड सम मैंडेट कि एवरी बैंक शुड हैव एटलीस्ट सम परसेंटेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ रुपे कार्ड. नाउ इट वाज अ मैंडेट टू द बैंक. अब सोचो कि बैंक को इश्यूएंस का मैंडेट आ गया तो यूजेज का ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना बनता है, रुपए में आपका वो यूजेज बढ़ता रहेगा. तो ऑटोमेटिकली आपका मास्टर एंड वीजा का यूजेज कम होगा तो उनका इनकम डाउन होगा. राइट. So they had lot of to and fro with the government. There were lot of issues and there were lot of issues getting handled by Supreme Court also at that point of time. But there were lot of, as you rightly mentioned, right, कि foreign market में dominance है वीजा एंड मास्टरकार्ड का एंड ऑल द बैंक्स का, कि वहां पे उनका इंटरचेंज इम्पैक्ट हो सकता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. ओके. दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि यूपीआई फ्री है, तो जो यूपीआई जो चलाता है वो कैसे पैसे कमाता होगा? See, so NPCI is earning on each and every transaction, but how, right? So bank is burning the money in this case. ओके. Correct. So इसको थोड़ा larger point of view से सोचते हैं. When UPI was introduced, ठीक है, तो UPI ने मतलब as a bank, if I today think of myself, let's say I am a bank, ठीक है, तो my spending is happening through debit card, one. Second is ATM withdrawals. जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो ATM के थ्रू विड्रॉ हो रहा है एज इन फॉर्म ऑफ कैश, वो इकोनॉमी में स्प्रेड हो रहा है. दैट इज सेकंड थिंग. ठीक है, फर्स्ट इज डेबिट कार्ड स्पेंड्स. थर्ड क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स इज दैट, बट क्रेडिट कार्ड इज अगेन credit which you are taking from the bank, not your bank account money which is already lying into the bank. And fourth is UPI because that is also a debit instrument, right? जब यूपीआई का स्पेंड्स आपका बढ़ा तो कहीं ना कहीं उसे डेबिट कार्ड को तो इम्पैक्ट किया ही किया, बट एटीएम विड्रॉल्स को भी इम्पैक्ट किया. राइट. नाउ जब बैंक स्टार्टेड गोइंग टू आरबीआई कि बिकॉज ऑफ यूपीआई वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम इसका अडॉप्शन इतना फास्ट है कि वी आर बर्निंग मनी ओवर देयर. तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं बैंक को बोला कि आप ये देखो कि आपके एटीएम विड्रॉल्स अगर गिर रहे हैं तो आप उसको सीधा सीधा डेबिट कार्ड से कंपेयर मत करो, बिकॉज आपका इंटरचेंज इनकम वहां से खत्म हो रहा है. डेबिट कार्ड पे बैंक्स आर अर्निंग इंटरचेंज इनकम, एंड अगर यूपीआई मार्केट से ले रहा है वहां पे उनकी कोई अर्निंग नहीं है, राइट? तो आरबीआई ने और एनपीसीआई ने ये बोला, इन द केस ऑफ यूपीआई ऑब्वियसली एनपीसीआई इज द गवर्निंग बॉडी, तो आरबीआई एंड एनपीसीआई ने ये बोला कि आप आपकी ओवरऑल बुक्स को देखो. अगर आपका एटीएम विड्रॉल्स डाउन हुआ है, बिकॉज मैनेजिंग एन वन एटीएम इज अ वेरी ह्यूज कॉस्ट फॉर द बैंक. आपको पूरा सीएमएस सिस्टम विच इज कैश मैनेजमेंट सिस्टम बिठाना पड़ता है जहाँ पे मनी लोडिंग होती है, नीड टू चेक, देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड, देयर इज अ एसी, एंड ऑल दैट कॉस्ट कम्स इनटू द पिक्चर, एंड देयर इज अ एटीएम सेटअप आल्सो, राइट? सो ऑपरेशनल कॉस्ट आपका बहुत हेवी है वहां पे. तो यू सेव ऑन द कॉस्ट एंड यू मैच इट विद द बेनिफिट व्हिच यू आर गेटिंग ओवर देयर. दैट इज द कांसेप्ट दे नीड टू फॉलो, राइट?
तो इन अ वे बैंक इज बर्निंग द मनी, बट अगर उनके दूसरे वर्टिकल को आप देखो, बैंक के एटीएम विंडोज वाले वर्टिकल, तो कहीं ना कहीं वो ऑफसेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं भी कर पा रहे. सो वहां पे एनपीसी बहुत सारी सब्सिडीज देता है उनको टू प्रमोट द डिजिटल इकोसिस्टम. सो देयर आर लॉट ऑफ सब्सिडीज व्हिच इज गेटिंग गिवन बाय एनपीसी आल्सो. But as an ecosystem, it is getting evolved, and eventually, I foresee that there would be charge on the UPI. Right now, still NPC is focusing on adopting the market. Ki let's make people habituated of this particular, instrument of financial instrument. Basically, once they get habituated, you can put a marginal charge and you can earn a big. So that's the concept which they might follow in the future. So to recover the burning part of it. मतलब फ्यूचर में यूपीआई पे चार्ज लग सकता है. लग सकता है, definitely. ओके, सो अभी मुझे थोड़ा ये जानना है कि पेटीएम की जर्नी क्या रही होगी इसमें. और मतलब एक तो हमारा जो कॉमन बैंकिंग सिस्टम है, और फिर शायद उन्होंने 2014-15 के अराउंड पेटीएम बैंक्स स्टार्ट किया. करेक्ट. तो वो नॉर्मल बैंक से पेटीएम बैंक कैसे अलग है, वो करेक्ट जानना है. So when you talk about the banking ecosystem, आपके एक तो full fledged बैंक हो गए HDFC, State Bank of India, ICICI and all those of the world. Second आपके हो गए पेमेंट्स बैंक, राइट. जैसे आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, राइट. वैसे आपका फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी है आज की डेट में. देयर आर लॉट ऑफ पेमेंट्स बैंक आल्सो व्हिच आर इवॉल्विंग इवेंचुअली. उसके बाद आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी होते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ बैंक्स आर देयर. नाउ पेमेंट्स बैंक एज अ कंसेप्ट आरबीआई इसलिए अलाउ कर रहा था बिकॉज उस टाइम के दौरान जो आप बात कर 2014-15, उसके बाद 2015-16 में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, तो आरबीआई एंड एनपीसी का फोकस ये था कि मुझे डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है. पेमेंट्स बैंक एज अ कंसेप्ट वाज लॉन्च्ड टू क्रिएट दैट डिजिटल इकोसिस्टम और टू हेल्प गवर्नमेंट इन क्रिएटिंग द डिजिटल इकोसिस्टम. कि आप एक पेमेंट्स बैंक ऐसा बना दो, क्योंकि अगर आप पेमेंट्स बैंक की उस टाइम की गाइडलाइंस भी देखो तो वहां पे आप मैक्सिमम डिपॉजिट जो रख सकते हो दैट इज ऑफ 1 लाख. राइट. 1 लाख से ज्यादा बैलेंस आप होल्ड नहीं कर सकते एज अ कस्टमर आल्सो, राइट. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर रेगुलेशंस आर आल्सो दैट. बट उसको इतना सिंप्लीफाई बनाना था ताकि आपका जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसकी ऑनबोर्डिंग एंड पेमेंट्स बैंक की ऑनबोर्डिंग शुड बी वेरी डिफरेंट. आपको उसको पूरा डिजिटल मोड में लेके जाना है, आपको फास्ट ऑनबोर्डिंग करनी है, आपको वो यूजर को टारगेट करना है जो आज की डेट में बैंक में जाके अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है बट वो कैश में सैलरी ले रहा है. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो सिक्योरिटी सर्विसेज, राइट. आपके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी तनख्वाह होती है करीबन 10-15-20 हजार रुपए. आपके ड्राइवर्स देख लो, उबर ओला के ड्राइवर्स वगैरह, उनकी भी तनख्वाह अगर वो सैलरी मोड में है तो 15-20-25 हजार तक होती है. तो ये जो स्मॉल सेगमेंट है उनको आपको टारगेट करना है, उनको आपको डिजिटल इकोसिस्टम में, बैंकिंग इकोसिस्टम में लेके आना है. तो उसके लिए पेमेंट्स बैंक का कंसेप्ट फॉर्म हुआ कि हाउ यू कैन इंक्लूड एवरीवन. आज के डेट में अगर आप कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स देखो तो मोस्टली वो नॉर्मल बैंक्स के होते थे, बट अगर मुझे इनको भी सैलरी अकाउंट्स देना है, इफ आई वांट टू टारगेट जोमेटो, उबर, स्विगी ऑफ द वर्ल्ड, उनके जो फ्लीट है उनको मुझे टारगेट करना है, उनको मुझे डिजिटली पैसे देना है, नहीं कैश देना है, राइट. तो वो मैं कैसे इकोसिस्टम में लेके आऊं, अगेन सिक्योरिटी गार्ड वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया. तो विद दैट कंसेप्ट इट वाज स्टार्टेड. ओके, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हो कि ये बैंक्स वाली जो सिस्टम है, डिजिटल बैंक्स, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? लाइक कौन से साल में वो स्टार्ट हुआ? लाइक 2014-16? So I think Paytm Payments Bank was one of the first bank who started in 2015, and उसके बाद I think there were several other banks who joined this particular race, right? तो Airtel Payments Bank आप recently देख रहे हो काफी famous हो रहा है. Jio Payments Bank also came into the picture later on. उसके बाद आपका India Post का भी एक payments bank है, then Fino Payments Bank is also there. There are a lot of payments banks which are there in the market, but the only payment bank which we know is Paytm Payments Bank because of obviously the branding which they have in the market, the kind of user base they already had on the Paytm application. So Paytm के पास हमेशा से leverage ये रहा था कि as a Paytm app they had a very huge user base, right. So उनके लिए one particular product को cross sell करने जैसा था कि Paytm Payments Bank live हो गया, उसको बस मुझे cross sell करना है. For them it was very easy to get into the market. Right. Then उन्होंने slowly and gradually अपनी जितनी भी Paytm की financial ecosystem थी उसको Paytm Payments Bank के अंदर क्लब करना शुरू किया, like Paytm Wallet Services, then Fastech also got launched, and there are a lot of other things. Even I think मार्केट में 2016 के अराउंड जब मोनेटाइजेशन हुआ तो उसी टाइम पे अराउंड 2015 एंड नवंबर के अराउंड पेटीएम बैंक्स लॉन्च हुआ था. करेक्ट. तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि मतलब पूरा डिजिटल पेमेंट आना और इस साइड मोनेटाइजेशन स्टार्ट होना. करेक्ट. और पूरा ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं डिजिटल मनी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया? तो इसके बीच आपका क्या थॉट है? सी मतलब एज अ पर्सन अगर डायरेक्ट कोरिलेशन निकाले तो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स व्हिच कम्स इनटू माय माइंड एज वेल, बट as of now I would like to say कि it can be just a timing match and the opportunity grabbing kind of a thing. Right.
तो उनको जब जब वो इवॉल्व कर रहे थे, जब उन्होंने क्यूआर कोड जस्ट लॉन्च किया था, उसी टाइम पे डिमोनेटाइजेशन का आना, उसी टाइम पे एंटायर पीपल शिफ्ट, मतलब जो पूरा जो यूजर बेस था वो अपना फिजिकल मनी डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा था, एंड दे वर शिफ्टिंग टू दैट इकोसिस्टम, सो दैट दिस पर्टिकुलर entire environment helped Paytm to grow exponentially in that particular part. But I don't have a direct comment on that, ki whether this was, a collaborative approach from the government or Paytm or not. Yeah. ओके बट एक बात तो ऐसी भी है कि जब 8 नवंबर 2016 को जब मोनेटाइजेशन हुआ, हाँ. और 9 नवंबर को पेटीएम की बड़ी सी टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज आई थी, Correct. और उसमें सबसे बड़ा फोटो था नरेंद्र मोदी जी का, Right. और उसके नीचे उन्होंने लिखा था, पहला Yeah, तो yeah. क्वेश्चन मुझे ये है कि क्या इस टाइप का मार्केटिंग पहले तो कर सकते हो, मतलब आप प्रधानमंत्री को सामने लाते हो, Brand ambassador. ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो, तो उनका कंसर्न लिया गया होगा कि नहीं, मतलब ऐसे मार्केटिंग हो सकती है कि नहीं, ये थोड़ा जानना है मुझे। अगेन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वही चीज है कि सी इट्स ऑल अबाउट ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। अगेन आई स्टिक टू दैट पॉइंट। पेटीएम को वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखी कि मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया डिमोनेटाइजेशन का, एंड देन दे शोकेस इट इनटू डिफरेंट वे। Right. सो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दैट कि आप किसी चीज के ऊपर क्या रैपर क्रिएट करके मार्केट में बेच रहे हो, राइट? तो उन्होंने उसके ऊपर रैपर क्रिएट किया कि वी सपोर्ट डिमोनेटाइजेशन बाय आवर डिजिटल प्रोडक्ट्स। नाउ यूजिंग द इमेज और यूजिंग द स्पीच, that is allowed or not allowed, that's a question which they might have internally thought of, and then they would have gone ahead with that particular piece. But there मतलब from a marketing point of view अगर मैं सोचूं कि if I am a marketing strategist and I am a marketing person, they did a good job to acquire the market at that point of time. Whether it was right or wrong, that needs to be checked with the right resources. यस, बट मार्केटिंग ने काम कर दिया। मार्केटिंग ने काम कर दिया, करेक्ट। ओके, दूसरा क्वेश्चन मुझे ये है कि पेटीएम को आज सबसे ज्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है वो मतलब पेटीएम वॉलेट से उनको इतना नुकसान नहीं हुआ है शायद, वो उनमें सक्सेसफुल थे, बट जब से पेटीएम बैंक्स आया तब से उनके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर नोटिस आ रही थी। करेक्ट राइट, तो पेटीएम बैंक्स कहाँ पे फेल हुआ? ठीक है। पेटीएम वॉलेट्स फेल नहीं हुआ, बट Correct. पेटीएम बैंक्स फेल हुआ, उसके कारण शायद कहीं ना कहीं उनको पेटीएम वॉलेट भी आज बंद करना पड़ा है। करेक्ट। तो वो थोड़ा टेक्निकली जानना है कि पेटीएम बैंक्स ने ऐसा तो क्या गलत कर दिया टेक्निकली जो नहीं करना चाहिए था। See, आप जब वॉलेट एज एन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो, यू हैव मोबीक्विक वॉलेट, यू हैव पेटीएम वॉलेट, एंड देयर आर अदर वॉलेट्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। ये सारे वॉलेट ना एक पीपीआई की गाइडलाइन के अंदर फॉलो करते हैं, व्हिच आर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। ठीक है, आपके प्रीपेड कार्ड्स भी हो गए फॉर दैट मैटर, राइट, जो आपको आप बेसिकली गिफ्ट कार्ड्स लेते हो, ये सारे फॉलोइंग करते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स गाइडलाइन के अंदर। वॉलेट वाज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर गाइडलाइंस, जहाँ पे आपका मीन केवाईसी होता है, फुल केवाईसी होता है। 10,000 के ऊपर का अगर आप अमाउंट रखना चाहते हो, आपको फुल केवाईसी करना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन होल्ड इज 1 लाख रुपीस, एंड 10,000 के नीचे कुछ मीन केवाईसी का कांसेप्ट था। So this different type of guidelines were there at that point of time, which Paytm was following and other companies were also following. Now, जब आप क्वेश्चन पूछे कि पेटीएम बैंक कहाँ पे फेल हुआ, so उसका आंसर देने से पहले I'll take you back to the structure of Paytm. OCL 197 Communication Limited, that is a parent organization, जिसका ब्रांड नेम है पेटीएम, करेक्ट? उसके अंदर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन आती है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, करेक्ट? दैट इज अगेन अ बैंक where 51% market share is 51% shares are with Vijay Shekhar Sharma and 49% is OCL, right? अभी OCL का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी डिफरेंट। वहां पे काफी सारे इन्वेस्टर्स है, जो चाइनीज इन्वेस्टर है, सॉफ्ट बैंक है, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्ट्रक्चरली इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। If I go one step ahead and if I tell you about other entity of the Paytm, आपके पास Paytm इंश्योरेंस भी है, आपके पास Paytm मनी भी है, आपके पास Paytm गेम्स भी है, आपके पास फिर Paytm ई-कॉमर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका Paytm मॉल वाला कंसेप्ट है। There are 7 to 8 legal entities which they had under 197 Communication Limited, out of which there are 3 legal entities: Paytm Banks, Paytm Money, and Paytm Insurance, which is regulated by your RBI bank, your Paytm Money because it's a exchange, so SEBI, and then Paytm Insurance, IRDA. अब आपके सर पे 3 रेगुलेटर बैठे हुए हैं, करेक्ट? आपकी पेरेंट एंटिटी एक ही है जहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं। आपके पास 8 डिफरेंट एंटिटीज है, एंड ये सब कुछ Paytm ऐप के अंदर कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है। सबका डेटा पूरा एक ही जगह पे कलेक्ट हो रहा है, राइट? नाउ डेटा की जब बात आती है, बैंकिंग डेटा की, आरबीआई इज वेरी 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 सीरियस अबाउट एंड वेरी कंसर्न अबाउट द कस्टमर डेटा व्हेन इट कम्स टू द बैंकिंग इकोसिस्टम। एंड अगेन सेबी भी आपके ऊपर बैठा है, आईआरडीए भी आपके ऊपर बैठा है। स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है, आपके बैकएंड में जो आपके सर्वर्स वगैरह है वो सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
तो जब आरबीआई ने क्वेरीज डालना शुरू की कि भाई मुझे मतलब आरबीआई का ऑडिट आया, उन्होंने कुछ लेट्स से 10 क्वेश्चंस पूछे, उसको क्लोज करने के लिए टाइमलाइन होती है, विच पेटीएम वाज नॉट एबल टू डू इन द राइट टाइमलाइन, एंड इट केप्ट ऑन गेटिंग इंक्रीज्ड. एंड जैसे मैंने बोला कि आपकी 8 लीगल एंटिटी, 3 रेगुलेटर्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो वो जो बोलते हैं ना एक गुत्थी हो गई है जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरबीआई की भी गलती हो सकती है इसमें. उसका रीजन ये है कि पहले उनको पता था, पहले तो उनको लाइसेंस दे रहे हैं बैंक का. दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने लाइसेंस दिया तब उनको पता था कि उनका जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं पेटीएम से ही कनेक्टेड है. उनका कोई बैकएंड सर्वर चेंज ही नहीं हुआ है. तो वो ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हैं कि उनका सर्वर सेम है और ये गाइडलाइंस के बाद वो लोग उनको नोटिस भेज रहे हैं कि भाई आपका सर्वर सेम है. पर वो तो पहले उन्होंने चेक किया होगा, ऑडिट किया होगा, तभी उनको बैंक का लाइसेंस मिला होगा. तो पहले तो आरबीआई का फॉल्ट हुआ ना इसमें. करेक्ट. फिर उन्होंने चेक किया 1 साल के बाद, फिर 2018 में उन्होंने नोटिस भेजा. तो ये इसमें आपका क्या कहना है? So you're rightly mentioning there are two sides of story, right? कि आज की डेट में पेटीएम ब्रांड इज गेटिंग मतलब आप देख रहे हो कि उसके स्टॉक प्राइस भी गिर रहा है बिकॉज ऑफ द मतलब व्हाटएवर हैपेंड विद पेटीएम पेमेंट्स बैंक. बट पेटीएम एज अ होल इकोसिस्टम इट्स वेरी बिग. अभी जब आप बोल रहे हो कि आरबीआई की भी गलती, उन्होंने पहले से ही चेक्स एंड बैलेंसेस रखनी चाहिए थी सिस्टम में. जब उन्होंने लाइसेंस दिया उनको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, 2 to 3 टाइम्स जब उन्होंने बोला कि आप नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो, देन अगेन दे अलाउड देम. सो कहीं ना कहीं अगर मैं एक न्यूट्रल पर्सन होके सोचूं कि ना ही पेटीएम की साइड से ना ही आरबीआई की साइड से, बट एक न्यूट्रल पर्सन, एक न्यूट्रल बॉडी, तो कहीं ना कहीं इट्स अ बैलेंस एक्ट बिटवीन आरबीआई एंड पेटीएम बोथ. वो बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ. दैट्स व्हाई it's not a failure of PTM actually, it's failure of RBI also as a governing body. Right. So you have very rightly mentioned कि RBI ने भी वो checks and balances शायद उस टाइम पे नहीं रखे. उसके बाद आप penalize कर रहे हो एक particular बैंक को with such a strong order कि आप from so and so date you cannot operate as a bank. That's a very big step to take into the market. राइट, क्योंकि आपने ही उनको अलाउ किया है पहले एज अ बैंक के लाइसेंस के लिए. तो इट्स अ वेरी मतलब आप अगर दोनों की साइड से सोचोगे राइट, तो वो टू एंड फ्रो होता ही रहेगा. एंड आई थिंक सो कि व्हेन यू आर वर्किंग इन एन इंडियन इकोनॉमी वेयर it's very dynamic in the nature in terms of your consumer, in terms of your technology, in terms of the ecosystem which you are building, the payment ecosystem. आपको ये सारी चीजें देख के धीरे धीरे सिनर्जी में आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो गवर्निंग बॉडी हो या चाहे वो फिनटेक प्लेयर लाइक पेटीएम हो. राइट. ओके. तो अभी पेटीएम बैंक के जैसे और कौन से अभी ऐसे स्टार्टअप्स है या ऐसी कौन सी कंपनीज है जो अभी चल रही है अच्छे से, जो आरबीआई की गाइडलाइन की हिसाब से है? सिर्फ फिनटेक वर्ल्ड में अगर जैसे हम बात कर रहे थे फिनटेक एज अ इकोसिस्टम और फिनटेक एज अ वर्ल्ड कैसे ग्रो हो रहा है, तो मतलब जो आपने डिमोनेटाइजेशन देखा दैट इज वन इवेंट. सेकंड वाज कोविड. ये दो इवेंट इतने बड़े हुए कि जहां पे फिनटेक्स वर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर. मतलब हर एक एरिया में से एक फिनटेक कंपनी बन रही थी एक टाइम पे. 5, 10, 15, 20 एम्प्लॉय के साथ साथ एक फिनटेक कंपनीज बन रही थी. नाउ आरबीआई एंड एनपीसी इज आल्सो लर्निंग. अगर आप देखोगे तो जब कोई फ्रॉड होता है तब उनको पता चलता है कि यार ये हमने टेक्नोलॉजी ओपन कर दी, उसका ये लूपहोल था जिसका इससे बेनिफिट उठाया और उससे ये एएमएल एक्टिविटी या फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हुई, तो अभी इसको बंद करते हैं. सो इट्स नॉट अ प्रोएक्टिव मॉडल विच आरबीआई इज फॉलोइंग और एनपीसी इज फॉलोइंग राइट नाउ. इट्स अ वेरी रिएक्टिव मॉडल. तो जब आपका विजन है कि आपको इन नेक्स्ट 5 years और इन नेक्स्ट 2 years और 3 years आपको आपकी पेमेंट इकोसिस्टम को वहां पे पहुंचाना है, आपको इतना फास्ट ग्रो करना है, तो फिर ऐसे छोटे छोटे फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज वगैरह होते रहेंगे. दैट यू नीड टू एक्सेप्ट फर्स्ट. अगर आप चाहते हो कि ये सब कुछ साथ में रख के, सारे चेक्स एंड साथ में रख के आप ग्रो, तो आपको फिर आपका स्लो एंड स्टडी ग्रोथ दिखाना पड़ेगा. तो ये गवर्नमेंट को भी एक्सटेंड लेना पड़ेगा. अगर आप देखो आज की डेट में स्लाइस करके कंपनी आई थी, 1/3 पेमेंट आपका क्रेडिट कार्ड का वो करती थी. देयर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच केम एंड व्हिच गॉट शट डाउन इन बिटवीन आल्सो. देन आरबीआई की और आप एनपीसी की गाइडलाइंस भी देखो फिनटेक के लिए, वो हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नई गाइडलाइंस आती है जो चेंज होती है. उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच गेट शट डाउन. आज की डेट में सब पेटीएम के बारे में बात कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज जो आई मार्केट में जिससे खड़े होने का कोशिश भी किया और वो बंद भी हो गई. उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है. तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग वे में आगे बढ़ना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील कि आपका विजन सही है कि आपको इंडिया को एक ग्लोबली एक ऐसी ब्रांड बनाना है कि जो फिनटेक वर्ल्ड में एक फर्स्ट कंट्री हो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. राइट. बट आपको रिस्क
के मेजर्स लेके चलने पड़ेंगे। आपको जो कंपनी जो स्टार्टअप आ रहा है आपको सोचना पड़ेगा कि वो आपके लिए काम कर रहा है, वो इंडिया के ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। तो जो रेगुलेशंस वगैरह आप बना रहे हैं वो भी उसके हिसाब से होने चाहिए एंड उनको साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि अगर आप उनके बिजनेस को शट डाउन कर रहे हो तो वो भी एक विजन के साथ आए, वो पर्टिकुलर कंपनी से भी बहुत लोगों का घर चल रहा है, तो सडनली बंद हो जाने पे इम्पैक्ट भी हो रहा है। दैट इज अगेन योर ओन सिटीजन्स, राइट। तो वो सब सोचना पड़ेगा एंड एक होलसम अप्रोच लेके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, दूसरा मुझे ये जानना था, पेटीएम तो एक कल्प्रिट अभी नाम हो गया है, ठीक है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होगी, जैसे आपने बताया, कि जिसमें आज की तारीख में भी मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही होगी। तो क्या टेक्निकली आप मुझे थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो कि ये जो पेटीएम बैंक्स या पेटीएम वॉलेट्स या कोई भी वॉलेट सिस्टम है, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकता है? उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई गेमिंग इंडस्ट्री है जो चाइना का सर्वर बेस्ड है, वहां से बिलोंग करता है, किसी को क्रिमिनल एक्टिविटी करना है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे हो सकता है? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। इट विल नॉट एग्जैक्टली क्लैरिफाई योर डाउट बट इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो कोविड के टाइम पे आपको पता होगा कि रियल मनी गेमिंग काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ। राइट नाउ रियल मनी गेमिंग इज कम्प्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, करेक्ट। तो आपका जो भी पैसा आ रहा है वो ऑनलाइन इकोसिस्टम से आ रहा है, देयर इज नो कैश इन्वॉल्व्ड। तो गवर्नमेंट ने भी कभी इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, बिकॉज उनको पता था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जीएसटी भी हो रहा है, मेरी जीएसटी की इनकम बढ़ रही है। सो जो मैं अभी आपको आगे पॉइंट बोल रहा था कि गवर्नमेंट कभी कभी दे कीप देयर मम, दे डोंट से समथिंग बिकॉज दे आर अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट। जीएसटी की इनकम हो रही है, देयर आर लॉट ऑफ इनकम सोर्सेज व्हिच रेवेन्यू स्ट्रीम्स व्हिच इज गेटिंग जनरेटेड फॉर द गवर्नमेंट आल्सो। बट गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो आपका पेमेंट गेटवे एंड पे आउट, देयर आर टू काइंड ऑफ एपीआईज व्हिच वर्क्स इनटू द मार्केट। ये दोनों एपीआई के थ्रू पूरी गेमिंग इंडस्ट्री चलती है, राइट। तो रियल मनी गेमिंग काम कैसे करता है? एक आपका पूल ऑफ मनी होता है जहां से आप पैसे कलेक्ट करते हो, जो विनर होता है उसको आप पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पे आउट होता है, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक टाइप का कसिनो ही हो गया। कसिनो इज इलीगल इन इंडिया बट रियल मनी गेमिंग इज लीगल इन इंडिया। वहां पे आप बोलते हो कि भाई अगर ये स्किल बेस्ड गेम है तो ये चलेगा रियल मनी गेमिंग में, लाइक ड्रीम 11, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर, आप देख रहे हो अभी आईपीएल में माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, जो शायद थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ पे आउट्स एंड कलेक्शन ऑफ मनी आज की डेट में एक एक मैच में कर रहे हैं, करेक्ट। अगर आप कलेक्टिवली देखोगे इन ईच एंड एवरी आईपीएल मैच देयर इज एटलीस्ट पूल ऑफ मनी व्हिच इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी एंड पीपल आर लूजिंग मनी लाइक एनीथिंग। नाउ अगेन एज आई सेड, दिस ऑल आर व्हाइट मनी बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द ऑनलाइन इकोसिस्टम। अभी इसमें इसका बेनिफिट कौन उठा सकता है? दिस ऑल आर गुड कंपनीज जिसके मैंने नाम लिए, बट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो ऐसे एक फ्रॉडुलेंट वेबसाइट बना देंगे, ठीक है, जहां पे वो रियल मनी गेमिंग दिखा देंगे, वो वेबसाइट को एक इंटरनल सर्कल में प्रमोट करेंगे, उसके बाहर आपको कुछ और दिख रहा होगा उसकी वेबसाइट वगैरह पे, बट बैकएंड में जो गेम चल रही होगी वो शायद कुछ भी हो सकती है, राइट, करेक्ट। उसमें शायद एक्चुअली गेम भी ना हो, उसमें शायद प्योर लक बेस्ड चांस बेस्ड गेम भी चल रही हो, क्योंकि आपने एक डोमेन दे दिया जिसपे आपने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर लिया, आपने कॉम्प्लायंस चेक्स उस टाइम पे फॉलो कर लिए, बाद में आपने वो वेबसाइट पे गेम ही चेंज कर दी। तो एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग, एट द टाइम ऑफ केवाईसी चेक्स, आपका वो सब कुछ हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, आपकी गेम को वो पर्टिकुलर फिनटेक प्लेयर ने वेरीफाई भी कर लिया और उन्होंने गो एड भी दे दिया। उसके पीछे से आपने सब कुछ चेंज कर दिया। अब लेट्स से मी एंड यू आर प्लेइंग दिस गेम, आई वांट टू ट्रांसफर 1 लाख रुपीज टू यू, तो मैं आपको वो गेम के टेबल पे बुलाऊंगा, मैं वो गेम हार के आपको दे दूंगा 1 लाख रुपीज। अभी मैंने अगर ये 1 लाख रुपीज आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिए होते, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई नीड टू फॉलो फ्रॉम द इनकम टैक्स गाइडलाइंस एंड एटसेट्रा पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ मैंने गेम हार के आपको दे दिए, अभी यहाँ की क्या गाइडलाइंस चलती है, ये मनी मॉनिटर होता है या नहीं होता है, ये कौन सी कंट्री से कहाँ पे जा रहा है, इसका कितना आरबीआई को कंट्रोल है ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये किसी को नहीं पता। तो इस तरीके से ना काफी कंपनीज आई, उन्होंने किया भी फ्रॉड वगैरह। आई नो कोविड टाइम पे आपने बहुत सारे न्यूज देखे होंगे कि देयर वाज वन चाइनीज ऐप गेमिंग कंपनी एंड एटसेट्रा, उन्होंने 500-600 करोड़ मंथली का फ्रॉड किया एंड आफ्टर 3 to 4 months दे गॉट टू नो, उसके बाद वो बंद हुआ। तो ये काफी चला उस टाइम पे। तो है काफी एम्बिग्विटी है फिनटेक में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बट वो टेक्नोलॉजी में लूपहोल्स इतने सारे कि लोग उसका यूज करके दे आर डूइंग सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड एटसेट्रा। अभी बिग क्वेश्चन मेरे लिए अभी ये है कि जितनी की कंपनीज मार्केट में आई जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाया, लाइक पेटीएम की बात करें तो फिनटेक इंडस्ट्री में टॉप पे था, बायजूस की बात करें तो एडटेक कंपनी में वो टॉप पे था, राइट। तो ऐसे जितने भी यूनिकॉर्न्स बने वो सारे आज क्रैश हो गए हैं, करेक्ट, और बुरी तरह से क्रैश हुए हैं। तो
मैं एज अ एंटरप्रेन्योर आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक्सेप्टेबल है कि मनी को ऐसे भी मतलब यूज कर सकते हो? और ऐसा नहीं था, सबको पता था। लाइक मैं एज अ एंटरप्रेन्योर मैं देख रहा हूँ बायजूस को, मतलब ऐसे आईपीएल में मतलब वो करेक्ट, इतना पैसा मैच बर्न में कर उन्हीं रहे का हैं, आपको दिख रहा है पैसा market बर्न कर रहे हैं, वहां पे रेवेन्यू नहीं हो रहा है। पेटीएम का 18,000 करोड़ का मतलब उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, जो वैल्यूएशन ही गलत थी। किसी को भी पता चल सकता है बैलेंस शीट देख के कि लास्ट 5 साल में वो पूरा लॉस पे जा रहा था। स्टिल मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी करके आईपीओ लेके आए और पब्लिक ने देखे बिना सारा इन्वेस्ट कर दिया। करेक्ट करेक्ट। तो क्या कहीं ना कहीं ये सारी स्टोरीज मतलब आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए मोटिवेटिंग तो नहीं है? तो क्या देखना चाहिए उनको? आपका विजन मतलब इसके ऊपर क्या है कि मतलब आप क्या बोलना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को कि मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक। सी जब आप मतलब यू योरसेल्फ इज एन एंटरप्रेन्योर, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर कि जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो, आपका गोल क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है लोगों के लिए। आपने उसी गोल के साथ कुछ शुरुआत की, करेक्ट, कि इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही है उसको मैं थोड़ा हटके कैसे करूं, ताकि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बट कहीं ना कहीं ये सारी इंडस्ट्री ने मतलब प्रॉब्लम तो साइड में रख दिया, पूरा वैल्यूएशन गेम ही बना दिया। मैं उसी पे आ रहा था, परफेक्टली आइडेंटिफाइड, है ना। तो पूरा बलून बना के उसको मतलब इतना बड़ा कर दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उनका नेचर कहीं रहा ही नहीं है, दिखा ही नहीं गया। करेक्ट। तो एज एन एंटरप्रेन्योर जो विजन से आपने कंपनी शुरू की थी, अगर आप उसके साथ स्टिक नहीं रहोगे तो फिर आप भटक जाओगे। तो जिस कंपनी के आपने नाम लिए और जहाँ पे आप बोल रहे हो कि वैल्यूएशन बहुत हाई था, एंड यू नो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आप देख रहे हो आज की डेट में कि काफी जगह पे रिटेल इन्वेस्टर इज एट द एंड ऑफ द डे, आपके रिटेल इन्वेस्टर ही सफर करते हैं। आप आईपीओ लेके आ जाते हो, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, एंड आपके जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे आपने उनको पैसा बना के दे दिया, आपने खुद ने पैसा बना लिया, आपके एम्प्लॉय ने ईसॉप से पैसा बना लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं फंस गया। तो जो आपका गोल था व्हेन यू स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो आपका गोल था कि मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है लोगों के लिए, वो गोल कहीं ना कहीं बीच में आपका फ्लक्चुएट हुआ है, तभी ऐसी चीजें हो सकती है। ये मेरा मानना है। अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो ये मेरा बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड स्टिक टू योर गोल, योर विजन शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि मैं मार्केट में इसलिए उतर रहा हूँ, मुझे लोगों का ये प्रॉब्लम था। अगर लोगों का मेरा प्रॉब्लम ये था कि यार मेरी पेमेंट इकोसिस्टम को मुझे डिजिटाइज करना है, तो मेरा वही गोल होना चाहिए। फिर मैं वैल्यूएशन की गेम में जाके हर 2-3 महीने में या 4-5 महीने में मैं मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट उठा रहा हूँ, मैं अपनी वैल्यूएशन बड़ी कर रहा हूँ, फिर मैं अपने स्टॉक्स उसमें से वो करके अपना पैसा बना रहा हूँ। वो थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर वो थॉट प्रोसेस आपका है तो आप सिर्फ वैल्यूएशन की गेम करते रहोगे, लास्ट में आप आईपीओ लेके आओगे, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, एंड आपका पूरा बिजनेस इतना अनऑर्गेनाइज हो चुका होगा कि आप जाके भी उसको समेट नहीं पाओगे, जो आज की डेट में मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रहा है। इवन योर एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी। जब आप बेजूस की बात कर रहे हो, आप बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, उनके एम्प्लॉइज जाके लिटरली वहां पे उनकी ऑफिस में जाके हल्ला मचा रहा है कि उनको ना टाइप पे सैलरी मिलती है, ना इंक्रीमेंट अच्छे से होते हैं। स्टार्टिंग में हमने बहुत पैसा बन किया एम्प्लॉइज के पीछे, आज की डेट में वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर ना आपके कस्टमर आपसे खुश है, ना आपके एम्प्लॉइज आपके खुश है, तो आप कैसे एंटरप्रेन्योर हो? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अभी आपका एक्सपीरियंस से आप ऐसा बता सकते हो कि अभी कौन सी मतलब कंपनी है जो अच्छा कर रही है? लाइक पेटीएम के अलावा फोन पे है, रेजर पे है। See, there are a lot of players in the market right now, and every company has a very different business model. तो आप पेटीएम के बिजनेस मॉडल को अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको मार्केट में एटलीस्ट 100+ कंपनीज मिलेगी, बट आपको उसके एक एक बिजनेस वर्टिकल को पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं यूपीआई बिजनेस की बात करूं तो आपको अमेजॉन पे मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, फोन पे मिलेगा इनटू द मार्केट। अगर मैं पेमेंट गेटवे बिजनेस की बात करूं या पे आउट बिजनेस की बात करूं तो आपको कैश फ्री, रेजर पे, पे यू, बिल्डेक्स वगैरह मिलेंगे, राइट। तो आई कैन नॉट कोट वन कंपनी व्हिच इज डूइंग गुड इनटू द मार्केट, but yeah, I can definitely say one thing कि company which is compliant to all the government guidelines and going ahead with slow and steady approach, जो हम कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनते आए हैं हमेशा, वो स्टोरी आज की डेट पे भी वैलिड है इन ईच एंड एवरी बिजनेस ऑल्सो। आप ग्रो करो, बट आप हर चीज को, हर चेक्स एंड बैलेंसेस जो आपके कंप्लायंस के, उसको साथ में लेके ग्रो करो, तो नो वन वुड बी एबल टू टच यू। ओके, ठीक है। तो आपके पेटीएम के हर बिजनेस वर्टिकल के साथ देयर आर कॉम्पिटिटर्स, एंड आपको उन सबको माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी कंपनी इज डूइंग गुड इनटू देयर पर्टिकुलर वर्टिकल आल्सो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोट वन कंपनी टू बी राइट। या ओके, तो अभी तक तो जो ये बात थी फिनटेक के लिए, करेक्ट। दूसरा मुझे क्वेश्चन था कि मतलब आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। करेक्ट। इवन ट्रेडिशनल बिजनेस B2B सारे ऑनलाइन जा रहे हैं। करेक्ट। उनका ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन हो रहा है। करेक्ट।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे एक चीज जाननी थी कि लाइक आपका जो बैकग्राउंड है, आपने बताया कि आप अभी जॉब कर रहे हो लॉयल्टी रिवॉर्ड्स में, तो क्या आप कस्टमर रिटेंशन के लिए ऑनलाइन इंडस्ट्री में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक अच्छी कोई स्ट्रेटेजी बताओ जो हमारे व्यूअर्स एक्सेप्ट कर पाए और उनसे भी उनको फायदा हो। ठीक है, तो जब आप इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना, तो इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा, चलो लेट्स से इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, अगर उनको 100 रुपए में कोई चीज यहाँ पे मिल रही है और वही चीज 80 रुपए में कहीं दूर भी मिलेगी ना, वो चले जाएंगे वहां पे। तो आपका जो प्राइस पॉइंट है, जो प्राइस पॉइंट पे आप कोई चीज मार्केट में लेके आना चाहते हो, दैट शुड बी वेरी करेक्ट। दैट इज फर्स्ट थिंग फॉर इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर। अभी आप कस्टमर को अक्वायर तो कर लोगे, राइट, बट जैसे मैंने बोला कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो, दूसरी ब्रांड मार्केट में आती है, कुछ सस्ते में देता है, वहां चले जाते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, बेंजो, बिग बास्केट, डेली, ये सारे आपके फास्ट मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है जो आपको 15-20 मिनट में डिलीवरी कर देता है आपके डे टू डे। ब्लिंकिट ऑल्सो, राइट। दिस कंसेप्ट वाज स्टार्टेड विद डेंजो, बट आज के डेट में अगर आप मार्केट शेयर की बात करोगे, डेंजो इन सबके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है। जेप्टो काफी आगे पहुंच चुका है डेंजो से। तो वही है कि आपका प्राइस पॉइंट, आपने एक इनोवेशन सिर्फ काम नहीं करता है आज की डेट में, है ना, जो आपने बहुत राइटली मेंशन किया, कस्टमर रिटेंशन। डेंजो अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाया, वो कस्टमर कहीं ना कहीं इन सब में डिवाइड हो गए, बिकॉज ब्रांड वैल्यू भी थी। अगर आप बिग बास्केट, डेली की बात करो या फिर ब्लिंकिट की बात करो, उनकी ब्रांड वैल्यू बड़ी थी डेंजो से। आप जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट की बात करो, उसकी ब्रांड वैल्यू भी डेंजो से बड़ी थी, वो लोग मार्केट शेयर लेके चले गए, राइट। तो अगर कस्टमर को रिटेन करना है तो आपको सम काइंड ऑफ लॉयल्टी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा उनके लिए, जहां पे ईच एंड एवरी माइलस्टोन आपको एक कस्टमर की जर्नी बनानी पड़ेगी पहले, कि अगर कस्टमर मेरे साथ पहला ट्रांजेक्शन करता है, उसके बाद फर्स्ट मंथ में मैं उसको क्या बेनिफिट दे रहा हूँ, सेकंड मंथ में अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसको क्या एडिशनल बेनिफिट है, थर्ड मंथ में क्या बेनिफिट है, उसको कोई पॉइंट सिस्टम में आप ऑनरोल कर लो, उसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाओ जहां पे वो आपके साथ स्टिक रहे। तो कस्टमर स्टिकीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कस्टमर के लिए हर एक टाइमलाइन पे आपको उसके लिए एक वैल्यू नई क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो कस्टमर आपके साथ स्टिक रहेगा, तभी वो ब्रांड लॉयल रहेगा। वरना एज एंड व्हेन ही विल सी सम बेटर प्राइस प्रोपोजिशन फॉर हिम, he will move to other application, because it's very easy in today's world to delete one app and download new app. It's very easy, right? तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस पॉइंट के साथ साथ एक कस्टमर जर्नी को आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, जहाँ पे कस्टमर उसके साथ स्टिक होता रहे इन ईच एंड एवरी हिज लाइफ साइकिल विद योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, सो कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो? मतलब आप बैंक के बैकग्राउंड से हो, शायद उसी का एक एग्जांपल देके मुझे बताओ कि कैसे रिवॉर्ड्स देके आप कस्टमर को बेनिफिट कराते हो। करेक्ट। तो सी आज की डेट में द इंडस्ट्री इन विच वी आर वर्किंग, वी आर ट्राइंग कि आप हम जो भी बैंक्स के साथ काम करते हैं, राइट, तो बेसिकली वी डिजाइन द लॉयल्टी प्रोग्राम और रिवॉर्ड्स प्रोग्राम फॉर द बैंक्स और देयर कस्टमर्स बेसिकली, करेक्ट। तो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन ये होता है कि आज की डेट में हर बंदे का 3-4 बैंक में अकाउंट है, बट आप वो 3-4 बैंक में से कैसे प्राइमरी बैंकर बनोगे वो पर्टिकुलर कस्टमर के। तो एज अ राज, इफ राज एसबीआई के साथ भी एसोसिएटेड है, एचडीएफसी के साथ भी एसोसिएटेड है, आईसीआईसीआई एंड फेडरल के साथ भी एसोसिएटेड है, तो अगर एसबीआई मेरा क्लाइंट है तो मैं एसबीआई को कैसे प्राइमरी बैंकर बनाऊं राज के लिए, ये मेरा गोल होगा। तो वो कब अचीव होगा? तो अगर राज को पता है कि अगर मैं एसबीआई में अकाउंट खोलता हूं तो मुझे ये बेनिफिट है, अगर मैं उसमें बैलेंस रखता हूं तो मुझे एडिशनल ये बेनिफिट है, अगर मैं रेगुलर ट्रांजेक्शन करता हूं वही अकाउंट से तो ये एडिशनल बेनिफिट है, अगर मैं वहीं से लोन लेता हूं तो मेरा और एक बेनिफिट ऐड हो जाता है, करेक्ट। और अगर मैं वहां से डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड अवेल करता हूं, या फिर डेबिट कार्ड तो मुझे बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, बट मैं उसमें एटीएम की जगह पे डिजिटल स्वाइप करता हूँ, टैप एंड पे करता हूँ या ई कॉमर्स से स्पेंड करता हूँ, तो मुझे इतने ज्यादा बेनिफिट है। क्रेडिट कार्ड भी मैंने अगर एसबीआई का ले लिया तो ये मुझे एडिशनल बेनिफिट ये होंगे, राइट। तो ये पूरा राज की जो लाइफ साइकिल है विद द बैंकिंग इकोसिस्टम वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, कि राज बैंकिंग इकोसिस्टम में क्या क्या उसकी पूरी जो जर्नी में कहाँ पे उसके टच पॉइंट्स है, और वो सारे टच पॉइंट पे हम कुछ ना कुछ बेनिफिट राज को देंगे जिसकी वजह से वो वही बैंक के साथ स्टिक करेगा, एंड वो बेनिफिट शुड बी कॉम्पिटिटिव इन द नेचर। तो जो बाकी बैंक्स मार्केट में कर रही है उसके साथ कुछ एडिशनल अगर राज को यहाँ मिलेगा तो वो उसको प्राइमरी बैंक करेगा, तब जाके बैंक को आपसे फ्लोट इनकम मिलेगा, एमडीआर इनकम मिलेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे अगर वो कुछ चार्जेस लगा रहे तो वो इनकम मिलेगा, अगर वो क्रॉस सेल करना चाहते हैं आपको लोन, इंश्योरेंस वगैरह, तो वहां पे वो बेनिफिट कर पाएंगे। तो आपको प्राइमरी कस्टमर या आपको प्राइमरी बैंकर एसबीआई बनाने के लिए वो सारी जर्नी मुझे डिफाइन करनी होती है, एंड दैट्स हाउ द बैंक गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये बहुत ही डीप एंड थॉट थ्रू होता है। वी डू अ लॉट ऑफ नंबर क्रंचिंग,
यू नो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग डेटा साइंस के मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम क्रंच करते हैं, हम समझते हैं कि एक पर्सन की यू नो बैंकिंग लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, एंड उसके बाद हम उस टाइप के ऑफर्स भी, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आज की डेट में अगर आप मोबाइल लेने जाते हो एप्पल के स्टोर में, आपको पता है कि एचडीएफसी कार्ड में काफी ऑफर है, तो आप एचडीएफसी कार्ड ढूंढते हो मार्केट में, दोस्तों के पास पूछते हो, तो दोस काइंड ऑफ ऑफर्स, तो वहां पे मुझे, अगर वहां पे कोई और बैंक को मुझे प्राइवेट बैंक में बनाया तो उसके ऑफर्स वहां पे मुझे लगाने पड़ेंगे, मुझे वो टाइप कराने पड़ेंगे, टेक्निकल टाइप्स वगैरह, तो वो सब चीजें थॉट थ्रू करके हम पूरा एक प्रोग्राम बनाते हैं बैंक के लिए। राइट। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज से मतलब 50 साल पहले की अगर कोई मतलब कस्टमर और वेंडर की जर्नी देखा जाए तो उन दोनों के बीच के रिलेशन में ऐसा था कि अगर चाय पिला दी और अच्छे से 2 बात कर दी तो मतलब वो उनका रिटेंशन हो जाता था। करेक्ट। बट जैसे मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपको रिलेशनशिप में भी टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है, वो कस्टमर टिकेगा नहीं। करेक्ट। सही है। क्योंकि आप सोचो ना, आज की डेट में आप लास्ट, अगर मैं आपको सवाल पूछूं, आप पिछले 3 महीने में फिजिकली बैंक आपने कितनी बार विजिट किया? मैंने तो लास्ट 2 साल से नहीं किया। करेक्ट, तो वही चीज है, राइट। तो मुझे आपको अगर टच बेस कर रहा है तो मुझे डिजिटली करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे आपको वही डिजिटल ऑफर्स दिखाने पड़ेंगे, मुझे आपको रिवॉर्ड सिस्टम दिखाना पड़ेगा, मुझे आपको कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे, मुझे आपको रिटेन करके दिखाना पड़ेगा कि हम लोग माइलस्टोन में बनाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपको एप्पल आईफोन खरीदना है पॉइंट से 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको बैंकिंग इकोसिस्टम में इतने ट्रांजेक्शन डेबिट करके करने पड़ेंगे, इतना बैलेंस रखना पड़ेगा, तो हम वो भी पूरी जर्नी बना के देते हैं आपको, तो वही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एज ए रिलेशनशिप मैनेजर वो आपके साथ कॉल पे या मिल के एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिनर करके वो आपका लोन वगैरह नहीं ले पाएगा अभी, राइट। उस आपको एज अ कस्टमर पता होना चाहिए कि बैंक से मुझे इतने बेनिफिट हो रहे हैं, तभी आप उसके साथ काम करोगे। तो फिर वही है, अगर डिजिटल इकोसिस्टम है तो डिजिटली उसको नॉक करना पड़ेगा। राइट। सो थैंक यू सो मच जयराम, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है फॉर फिनटेक इंडस्ट्री, फॉर कस्टमर रिटेंशन, आई थिंक मतलब आपने जो अपने एक्सपीरियंस से जो डिटेल में डिस्क्राइब किया वो आई थिंक कहीं पे चैट जीपीटी में भी नहीं मिल सकता है। मुझे प्रैक्टिकली इतना इजीली आपने समझाया, उसके लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं आपको विश करूंगा कि आप फिनटेक इंडस्ट्री में मतलब बहुत आगे बढ़े और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहे। Thanks a lot, Raj, for hosting this particular talk, and it was very insightful for me also, because जब ऐसे conversation होते हैं तभी बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती है, तो thanks for asking right question at the right time to that's how we are able to spread this information across the larger forum. Yes. Thanks a lot.